Hello. Yes, we can hear you. Okay. Now I can hear you as well. So, first of all, everyone, please text in the chat box that you can hear me clearly. There is no issue in the audio or there is any technical issue, so that we could start properly. Okay. Okay, Rizwan. So, my name is Talha Sajid, and I'm here for this SEO masterclass. And first of all, let me share the screen to you guys. Uh, sorry sir, आपकी voice drop हो जाती है. Is there any problem on your end or my end? Can anybody can confirm? Can someone is also facing this issue? Okay, there is a issue with my mic or something. Is it clear now? Yes, it's clear now. Okay, fine. Okay, so let me share the screen first. Can you see the screen? Yes, we can see the screen. Okay. So this is the SEO masterclass. We will talk about SEO. Uh, First of all, I will explain some basics of SEO, how SEO works, and how things goes in SEO, and then we will have a question and answer sessions in which I will try my level best to answer the queries from you guys. Okay, so first of all, um, a brief my brief introduction. My name is Mohammad Taha Sajid, and I have more than 9 years of experience in SEO. And Alhamdulillah, I became the Google certified expert in 2022. So this is my a brief introduction. You can read other points as well. And I don't want to waste your time on my introduction. And let me start to introduce SEO to you guys. First of all, this is the table of content. We will talk about SEO, what is search engine, especially we will focus on search engine, like how it works and what are the fundamentals and all that. Three major pillars of SEO, two major types of SEO, and fundamental SEO components. So that will be the table of content for today's masterclass. Okay, so what is SEO? Like SEO is actually a set of techniques used to improve websites visibility and ranking in search engine results pages. Moreover, a goal or purpose of SEO is to increase organic traffic to a website. So when we talk about SEO, like it seems like it is very basic thing and it is very new thing in Pakistan market, but uh, all over the world there is a huge market of SEO, specifically SEO, because this is the main tool, the main source of the traffic on your websites. If you work on your website, if you are a clothing brand, if you are an e-commerce website, whatever you sell online,
you need to have SEO, a proper SEO of your website, so that your website could be visible to each and every one in your audience. Okay, so the first thing that come in your mind when we talk about SEO is is the visibility of your website. Okay, and in my opinion, after so many years of experience, that I can like share this experience with you guys, that SEO is something, I think, very important when it comes to e-commerce, because SEO is important for each and every website out there on Google, with every business which is online, as they need SEO. But when it comes to e-commerce business, SEO becomes more important, because if you are doing business in the long run, you need your products to be visible to every user. Okay, it will help you gain organic traffic to your website, and many users eventually will become your customers. Because if you are a business owner, if you like think like a businessman, you don't want always to spend money on creating ads, on running different campaigns, so that you could gain customers and to sell your product. You eventually need that people get to know your product, get to know your brand, so that they could come at your place, like if you have a physical store, or they could visit your website if you have a website, and they could purchase your product easily without your paid campaigns. And that is possible only with SEO. So that's why SEO is more important in e-commerce business. And like it's whether it's a local e-commerce, or a international brand. For example, if you talk about Amazon, like the biggest e-commerce uh, platform ever in the world, if you talk about Amazon, they also want SEO, uh, because SEO is something that people should follow on. And secondly, the if you talk about a simple brand which is now like a startup in Lahore or in Pakistan or in Karachi, anywhere, they also want SEO, just because of the matter of the fact is that they want someone to explain and to um, spread their business. Okay, uh, I have some chats. I think I have to read your messages along with my thing. Please give example. Mavish Ali. Yes, for definitely. Uh, Alamgir Khatak. This courses are in English. Okay, okay. So let me speak in Urdu. I think there are a lot of students which are like getting confused in English. So let me talk in Urdu. हम एसईओ की बात कर रहे हैं, और एसईओ के अंदर हम जी, अब आई थिंक जो लोग उर्दू में बात करना चाह रहे हैं, लाइक देयर इज नो इशू, हम उर्दू में बात कर लेते हैं। उर्दू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम एसईओ की बात कर रहे हैं। एसईओ के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है, और किन वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसईओ, पहली चीज़ मैंने ये पॉइंट रेज किया कि एसईओ जो है वो हर एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है, और हर एक वेबसाइट के लिए उसके उसका उसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बट ई कॉमर्स की जब बात होती है, जब आप और ई कॉमर्स लाइक ऑनलाइन सेल आप कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर एसईओ की इम्पोर्टेंस मजीद बढ़ जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप हमेशा, अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप ये चाह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट कोई खरीदे ऑनलाइन, तो आप नहीं चाहोगे कि आप हमेशा पेड एड्स, जो कि हम गूगल एड्स हम कहते हैं, जो कि यूट्यूब पे एड चलते हैं, या गूगल पे एड चलते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या डिफरेंट जो सोशल मीडिया चैनल्स पे आप एड्स देखते हो, वो ऑब्वियसली पेड होते हैं। उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो आप नहीं चाहोगे कि हमेशा
आज आज भी और आज से 10 साल बाद भी आप हर बार पे करके गूगल को या फेसबुक को आप अपना ऐड चलवाओ, और उस ऐड से आपके पास कस्टमर आए और उन कस्टमर से आप अपना रेवेन्यू जनरेट करो। आप चाहोगे कि कुछ अरसे में, 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपका ब्रांड या आपका प्रोडक्ट इतना ज्यादा फेमस हो जाए मार्केट के अंदर कि आपको लोग खुद अप्रोच करना शुरू कर दें। बिकॉज ये एक आपकी आपके ब्रांड की सबसे बड़ी पहली सक्सेस होगी कि आपका एक नया ब्रांड है, एक नई चीज है, और अभी छोटे लेवल पर है, पाकिस्तान के अंदर ही है या कुछ शहरों में है। तो आप चाहोगे कि लोग आपको खुद सर्च करें, जिस तरह अमेजोन है। अभी चैट के अंदर कोई मुझसे एग्जांपल्स का पूछ रहा था, तो अमेजोन की एग्जांपल सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर दराज की एग्जांपल बहुत बड़ी है। इसके अलावा अली बाबा है, अ, और इस तरह के ईबे है, ये इंटरनेशनल ब्रांड ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो और अगर लोकल ब्रांड्स की बात की जाए तो बहुत कुछ है। आप डेली अपने मोबाइल फोन पे कितना कुछ देखते हो, एक हैंड फ्री से लेकर, एक हेडफोन से लेकर, मोबाइल कवर्स से लेके आपके जूते, आपके कपड़े, हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। बट ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं पेड एड्स पे चल रहा है आपको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी एसईओ का उतना ज़्यादा रुझान नहीं है, लोग उतना ज़्यादा अभी एसईओ को समझ नहीं पा रहे। और ये मास्टर क्लास है ही इसीलिए, आप लोगों के लिए स्पेशली, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि जो है वो एसईओ कितनी इंपॉर्टेंट है जब आप एक बिजनेस करना चाह रहे हो। और इस सब चीज़ों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आएगी कि आप बिजनेस को कितना सक्सेसफुल कर सकते हो। तो ऑनलाइन बिजनेस की जब भी बात आएगी या ई कॉमर्स की जब भी बात आएगी, ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये चीज़ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपकी एसईओ कितनी स्ट्रांग। बिकॉज एसईओ इवेंचुअली ये चीज़ फाइनल करती है कि क्या आपके पास ऑर्गेनिक कस्टमर्स आएंगे, या आपके पास लोग खुद आपकी वेबसाइट को सर्च करके आपके पास आएंगे। अगर आप किसी एक कोई एक लाइक आप कुछ बेचते हो, अ, अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन बेचते हो, तो क्या गूगल पे जब लोग सर्च करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपकी वेबसाइट आती है या नहीं आती? अगर आती है तो इट्स मीन कि आपकी एसईओ अच्छी है, इट्स मीन कि लोग उसको क्लिक कर सकते हैं, एंड क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, और वेबसाइट पे लैंड करने के बाद वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं अगर उनको अच्छा लगता है। बट अगर आपकी वेबसाइट ही शो नहीं होती, तो उसके बाद वो आपकी आपकी जो है वो वेबसाइट को नहीं, लाइक जब आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी किसी के पास, तो आपकी वेबसाइट पे कस्टमर नहीं आएंगे, और जब कस्टमर नहीं आएंगे तो फिर आपके लिए ज़रा प्रॉब्लम होगा। देन आप डिफरेंट सोर्स यूज करोगे, जिसके अंदर है कि आप पेड एड्स रन करोगे, आप कुछ और चीज़ें ऐड करोगे। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एसईओ की इम्पोर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज के, अच्छा ठीक है, आपको यहाँ तक कोई चीज़ें क्लियर हैं? आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप आपके पास क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अ, जी, आलमगीर खटक जी। कोर्स मॉड्यूल का जहाँ तक सवाल है, आज हम एसईओ की बेसिक्स पढ़ेंगे कि एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और एसईओ को हम किस तरह करते हैं। एंड नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगे।
ओके, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट सर्च इंजन। लाइक सर्च इंजन होता क्या है, जिसके लाइक क्योंकि एसईओ की फुल फॉर्म ही हमारे पास यही है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, के हम सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो first of all, a search engine is a software system that finds web pages that match a web search, for example Google, Bing, Yahoo. So पहली चीज सर्च इंजन को के लिए मैं आपको बता दूं कि सर्च इंजन हर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिस पे आप जाके कुछ सर्च कर सकते हो, और उनका अपना एक एल्गोरिदम है जो कंप्यूटर से जिनका ताल्लुक है, वो एल्गोरिदम को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। और जिनका ताल्लुक कंप्यूटर से नहीं है, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि किसी ने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किए होते हैं, और उन फार्मूला की बेस पे वो आपके हर सर्च का या आपके हर सवाल का जवाब देता है। ठीक है। तो अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट फाइंड्स वेब पेजेस दैट मैच अ वेब सर्च। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो उसको वो अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको आंसर करता है, जिसके अंदर गूगल सबसे बड़ा है, जो कि लाइक वर्ल्ड फेमस है, बिंग है, याहू है। और इसकी अगर हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो गूगल ऐसा नहीं था कि पहला सर्च इंजन हो। गूगल से पहले बाकी सर्च इंजन लॉन्च हो चुके थे, बट सक्सेसफुल गूगल इसलिए हुआ क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी याहू से और बिंग से। बट अभी भी याहू और बिंग एक अच्छा शेयर मार्केट में रखते हैं, इसीलिए उनका कयाम अभी मार्केट में चल रहा है। अदरवाइज और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। देर आर लॉट ऑफ सर्च इंजन इन द मार्केट, और बहुत सारे सर्च इंजन अभी आ भी रहे हैं, लाइक मार्केट में आ रहे हैं और अ, चल भी रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो सबसे बड़ा गूगल है, जिसका मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना सर्च इंजन बनाया हुआ है। डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि टेक रिलेटेड कंपनीज हैं वो अपने सर्च इंजन बना रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इसी मार्केट पे ही हम हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वगैरह का दारो मदार भी है। ठीक है। So, anyways, so Google was launched in 1998 and is now the most significant search engine with more than 90%। ये जो है इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ का अंदाजा हो कि गूगल कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। 90% ऑफ द मार्केट शेयर जो है उसके आपका आपका गूगल पे है। इट्स मीन कि अगर आप गूगल के को कैप्चर करने में कामयाब हो गए, आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे अच्छा रैंक करने में कामयाब हो गई, देन आपके आपके पास यूजर्स की या ट्रैफिक की या कस्टमर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इसके अंदर मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि अगर आपकी एक दुकान किसी एक एरिया में है और वो उसको टारगेट कर रही है, तो शायद वो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, पूरे शहर में कामयाब हो जाए। और अगर उससे भी ज़्यादा कामयाब हो जाएगी तो शायद पूरे मुल्क में कामयाब हो जाए। बट अगर आपकी वेबसाइट है, उसी उसी प्रोडक्ट की आपने वेबसाइट बनाई है और उसकी एक अच्छी एसईओ की है, तो आपके पास कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आ सकते हैं, और आपकी ट्रैफिक है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सकती है। जो कि लाइक और वो ऑब्वियसली दुनिया की जितनी भी ट्रैफिक है वो मैक्सिमम 90% ऑफ द मार्केट शेयर जो है वो गूगल के पास है। तो गूगल की अहमियत बताने का मकसद ये है कि आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते गूगल। एनीवेज बाकी चीज़ें एल्गोरिदम का मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ कंप्यूटेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनको देखते हुए कोई भी सर्च इंजन काम। ओके। सो सर्च इंजन, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्च इंजन काम किस तरह करता है। ये अगर आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देखते हैं तो एक आपको इमेज के अंदर शो होता है कि आप जहाँ आप कीवर्ड सर्च करते हो, जो कुछ भी आप सर्च करते हो वो गूगल के लिए एक कीवर्ड है। गूगल उसको एक अपने लिए एक क्यूरी के तौर पे लेता है। उसके यूजर उस पे उससे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, तो और उसके बाद वो आपके आपके पास आंसर्स आते हैं। वो आंसर्स किस तरह आते हैं, वो आंसर्स की क्या लाइक सीक्वेंस, यही सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस क्यों होती है, तो उसके लिए 3 स्टेप गूगल हमेशा फॉलो करता है। अच्छा, अब हम जब सर्च इंजन की बात करते हैं तो गूगल की बात इसलिए करते हैं बिकॉज जिस तरह अभी हमने बताया
कि गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो इसीलिए हम गूगल के एल्गोरिदम के मुताबिक ही चल रहे हैं, और गूगल के एल्गोरिदम के मुताबिक ही हम अपने सवालों के जवाब देते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा एसईओ में फोकस ही गूगल पे होता है और गूगल के एल्गोरिथम्स पे ही होता है। बिंग या याहू या किसी और प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा होता, इसीलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं होता। और उसकी भी वजह वही है जो कि हमारे पास बाकी प्लेटफॉर्म्स पे उतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है जितनी ज्यादा गूगल के ऊपर है। सो एनीवेज, अब गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हो और गूगल आपको रिजल्ट शो कर रहा होता है, तो गूगल आपको रिजल्ट शो करने के 3 स्टेप्स के अंदर आपको आपको रिजल्ट देता है। पहली चीज वो करता है क्रॉलिंग। आपने जो सर्च किया है, आप वो इसको अच्छे तरीके से सर्च करेगा। सर्च करने के बाद अपने डेटाबेस, जिसके डेटाबेस में, गूगल के डेटाबेस में दुनिया की हर वेबसाइट होती है, वो अपने डेटाबेस में क्रॉलिंग करेगा। क्रॉलिंग मीन्स कि वो अपनी अपने डेटाबेस के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबको रीड करेगा। और आपका जो आपने क्वेश्चन सर्च किया है गूगल के ऊपर, आपका जो कीवर्ड है, वो जिस वेबसाइट के कंटेंट से सबसे ज्यादा मैच करेगा, नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंडेक्सिंग है, उस पॉइंट के अंदर जाके वो आपके आपके उस आपके कीवर्ड को शो करेगा रैंकिंग के अंदर। ओके, ताकि आपको जो रिजल्ट मिले वो सबसे एक्यूरेट मिले। और आपके जो, इसीलिए टॉप 3 के जो रिजल्ट्स होते हैं मैक्सिमम लोग उस पर क्लिक करते हैं। और ये भी बाय द वे आपको मैं बता दूं कि अ, एक रिसर्च है कि साइकोलॉजिकली जो भी इंसान गूगल पे कुछ सर्च करता है, 95% ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वो सर्च करने के बाद जो पहले 3 रिजल्ट्स आते हैं उनमें से किसी एक पे लाजमी क्लिक करते हैं। 95%। उसकी वजह यह है कि एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ हुआ है कि गूगल पे जब भी कुछ सर्च करेगा, एक एक लेमैन को जो जो एसईओ नहीं जानता, वो भी उसको भी इतना ट्रस्ट हुआ हुआ है गूगल के ऊपर कि उसको पता है कि मेरे जो मैं सर्च कर रहा हूँ उसका रिजल्ट जो है, बेस्ट रिजल्ट जो है वो पहले 3 में से किसी एक वेबसाइट के अंदर है, इसलिए वो उसको जरूर क्लिक करते हैं। 95% ऑफ द पीपल सर्च फर्स्ट 3, एटलीस्ट फर्स्ट 3 रिजल्ट, वो किसी एक को लाजमी सेलेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि गूगल पे ज्यादा ट्रैफिक है, बिकॉज गूगल का ट्रस्ट लेवल ज्यादा है। आप में से कितने लोग हैं जो याहू यूज करते हैं या बिंग यूज करते हैं अपने डेली पर्पस के लिए? कभी ना कभी तो शायद की होगी, बट डेली पर्पस के लिए हम सबसे ज्यादा गूगल ही इस्तेमाल करते हैं। और उसका रीजन यही है क्योंकि उनका क्रॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, उनकी इंडेक्सिंग स्ट्रांग है। अच्छा, इंडेक्सिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गूगल आपकी वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट ओनर हैं, तो आपकी वेबसाइट को जब उसने क्रॉल कर लिया और आपकी वेबसाइट को उसने अपने डेटाबेस में एंटर करना है, तो आपके वेबसाइट को वो किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स की बिना पे, आपके कंटेंट की बिना पे, आपकी इमेजेस की बिना पे आपके अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा। और जब भी कोई इंसान उस कीवर्ड को सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट को वो अपने रिजल्ट्स में शो करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं। ओके, सो अब ये तो सारा हो गया ओवरव्यू के गूगल किस तरह काम करता है। और इसके अंदर खैर और भी बहुत लंबी डिटेल्स हैं। हम आपके क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में भी हम इसको जरूर जो है वो ऐड करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एसईओ किस तरह की जाती है। एसईओ के अंदर पहली चीज, जो 3 बड़े मेजर स्टेप्स हैं, उसके अंदर आता है ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ओके, ऑन पेज एसईओ वो होती है कि आप अपनी वेबसाइट पे, अगर आप अपनी वेबसाइट को चाह रहे हो रैंक करना गूगल पे, तो आप क्या क्या कुछ करोगे। अपनी वेबसाइट को अगर आपने गूगल पे रैंक करना है, तो जो जो चेंजेस और जो जो कंटेंट, इमेजेस, और इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट पे वीडियोस हैं, आपकी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के इमेजेस, आपकी वेबसाइट का लोगो, आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की हर एक चीज जो आपने सेटिंग करनी है अपनी ही वेबसाइट पे, वो आपका सब कुछ आता है ऑन पेज के अंदर। और ऑन पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ऑन पेज एसईओ अच्छी है, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज ऑन पेज जब अच्छी होगी, तो आपके
यूजर्स आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आएंगे। और जब आपकी वेबसाइट पे यूजर ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो आपकी वेबसाइट्स का आपका लेआउट जो है, आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, आपकी वेबसाइट पे जो बटन्स लगे हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस हैं, रिव्यूज हैं, रेटिंग्स हैं, कंटेंट है, ये सारी चीजें अगर अपीलिंग होंगी तो आपका यूजर खुश होगा। और ऑब्वियसली अगर उसने कुछ परचेज करने का इरादा किया हुआ है तो वो आपकी वेबसाइट से परचेज करेगा। ओके। बट अगर आपकी वेबसाइट पे ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी तो कोई यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आ भी गया है तो वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको जो अच्छा ऑफर करेगा प्रोडक्ट वो उससे परचेज करेगा। ठीक है। तो इसीलिए तो हमारी ऑन पेज एसईओ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कस्टमर्स को रिटेन करने में। ओके। सो सो फर्स्ट थिंग जो है वो आपने ऑन पेज एसईओ को फोकस करना है। सेकंड जो है वो हमारे पास आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ जिस तरह नाम पर इसका बता रहा है कि ऑफ पेज एसईओ वो एसईओ है जो आप अपनी वेबसाइट पे नहीं करते, आप दूसरों की वेबसाइट पे जाकर करते हो, जिसको आम अल्फाज में हम रेफरेंस भी कहते हैं। आप अपने रेफरेंस क्रिएट करते हो, आप दूसरी वेबसाइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट के लिंक लगाते हो, ताकि अगर कोई उस वेबसाइट पे विजिट कर रहा है और वो तो आप चाहोगे कि वो उसके पास आपकी वेबसाइट का लिंक भी आए और वो उस लिंक को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर देखी जाए तो अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अ, अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, फेसबुक पे शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, ट्विटर पे शेयर करते हो, तो ये सब कुछ ऑफ पेज में आ रहा है। ओके। सो फर्स्ट फॉर फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट को आप अपनी वेबसाइट को चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट की आपके वेबसाइट के रेफरेंस इंक्रीज, लोग आपकी वेबसाइट के बारे में ज्यादा जाने। आपने अपनी वेबसाइट की ऑन पेज तो बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन आपकी वेबसाइट को अभी तक लोग जानते नहीं है, लोगों तक आपकी वेबसाइट का लिंक नहीं पहुंचा, लोग आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं इंक्रीज हो रही। तो आप ये करोगे कि आप अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो आप डिफरेंट चैनल्स में देना शुरू कर दोगे, डिफरेंट चैट ग्रुप्स में दोगे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दोगे। ओके। आप किसी बड़ी जो कि कंटेंट या आर्टिकल पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं या ब्लॉग पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं उनको दोगे, वो आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर लगाएंगे, जिससे जिनकी ट्रैफिक अच्छी है आप वो दोगे। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का लिंक किसी अमेजोन की वेबसाइट पे लगाओ, आप कोई अ, कपड़े बेचते हो, कोई क्लॉथिंग ब्रांड है आपका, लेकिन आपकी वेबसाइट पे लोग ट्रैफिक आती नहीं है ज्यादा। अगर आप अमेजोन पे, अमेजोन का जो क्लोथिंग सेक्शन है उसके अंदर आपका लिंक लगा हो, तो जो भी अमेजोन पे जाएगा, अमेजोन पे जाके वो क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो दिस इज ऑफ पेज एसईओ। ओके। तो इन चीजों के अंदर भी लाइक ऑफ पेज एसईओ भी है, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि ऑन पेज है। क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट को जितना ज्यादा लोगों तक विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, हमारी वेबसाइट उतनी अच्छी परफॉर्म करेगी और हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक। सो इन 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 शॉर्ट अगर देखा जाए, ऑन पेज जो है हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी करती है, और जितना अच्छा परफॉर्म करेगी हमारी वेबसाइट पे कस्टमर उतना अच्छा रिटेन करेंगे, और हमारे कस्टमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ऑफ पेज एसईओ जो है वो असल में हमारे यूजर्स को हमारी वेबसाइट तक ले आने में मदद करती है। ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है। तीसरा हम जब बात करते हैं तो टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं। टेक्निकल एसईओ के अंदर हमारे पास ये है कि हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने अपनी वेबसाइट का लेआउट भी बहुत अच्छा कर लिया है, हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा कर लिया है, हम अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ के अंदर उसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी कर ली है, बट अगर हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है, हमारी वेबसाइट सही तरह लोड नहीं हो रही, हमारी वेबसाइट पे जो इमेजेस लग रही हैं वो प्रॉपरली ओपन ही नहीं होती, तो भी एक बैड इंप्रेशन जाता है यूजर पे, जिसकी वजह से यूजर जो है वो हमारी वेबसाइट पे बाउंस बैक कर जाएगा, लाइक वो हमारी वेबसाइट से चला जाएगा। इसके इसके लिए भी मैं आपको एक रिसर्च बता दूं कि यूजर आपकी वेबसाइट पर 3 सेकंड से ज्यादा वेट नहीं करता। अगर आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत स्लो है
तो आपकी अब यूजर इतने तेज हो गए हैं और ऑब्वियसली ट्रैफिक इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए हज़ारों ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट पे वेट करे। ठीक है। और अगर आपका ब्रांड कोई स्टार्टअप है आपका, तो और आपके वेबसाइट आप ब्रांड को अभी लोग इतने जानते भी नहीं है, तो कोई भी आपकी वेबसाइट पे आके वो इस चीज़ का वेट नहीं करेगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और वो लोड होने में टाइम लग रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट के लिए वेट करे नहीं। इनफैक्ट अमेजोन जैसी बड़ी वेबसाइट के लिए भी कोई वेट नहीं करता। अगर उसको लेट लोडिंग लेट हो रही है तो वो उसको छोड़ के किसी और वेबसाइट पर चला जाता है। इसीलिए अपनी लोडिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, अपने इमेजेस की लोडिंग सही करने के लिए, अपनी वीडियोस अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर लगे हुए हैं उनकी लोडिंग के लिए, अगर आपके बटन्स लगे हुए हैं, कोई उस बटन पे क्लिक करता है परचेज नाउ का या ऑर्डर नाउ का बटन पे क्लिक करता है और क्लिक करने के 5 सेकंड 10 सेकंड बाद तक भी वो अभी तक नेक्स्ट पेज ओपन नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत ही बैड इंप्रेशन होता है जिसकी वजह से यूजर आपकी वेबसाइट से चला जाता है। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज, ये सब वो चीजें हैं जिनको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एसईओ के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं और अपनी वेबसाइट को बेहतर करना चाह रहे हैं। आपकी वेबसाइट बन गई है, ये काफी नहीं है। आपकी वेबसाइट बनने के बाद चलती कैसे है, परफॉर्म किस तरह कर रही है, लोग उस वेबसाइट पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और यही हमारे पास जो है एसईओ कहलाती है कि आप वेबसाइट को कितना अच्छा और कितना ऑप्टिमाइज कर सकते। ओके। सो नेक्स्ट नेक्स्ट ये चीज है, अब इस एसईओ को करने के दो मेजर टाइप्स, एक वाइट हैट एसईओ होती है, एक ब्लैक हैट एसईओ होती है। ओके। और सिंपल सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए तो एसईओ दो किस्म की होती है, एक लीगल होती है, एक इलीगल होती है। ठीक है। एक एक वाइट हैट होती है और एक ब्लैक हैट होती है। वाइट हैट होती है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो लीगल तरीके से कर रहे हैं और बहुत ध्यान से कर रहे हैं। आप उसके अंदर किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं कर रहे, वो सब कुछ आपका बस वाइट हैट एसईओ कहलाती है। ब्लैक हैट एसईओ को मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, ब्लैक हैट एसईओ को मैं कभी प्रमोट नहीं करता। बट क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जिसका जिक्र करना जरूरी है, इसलिए मैंने ये कर दिया है कि ब्लैक हैट एसईओ भी होती है, विच इज इलीगल, विच इज बैड, बट बिकॉज मार्केट के अंदर है तो इसका कुछ कर नहीं सकते। इसमें डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वाइट हैट के अंदर ये है कि गूगल ने आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं सिर्फ आप उन पे काम करो और गूगल की रिक्वायरमेंट्स, गूगल के एल्गोरिदम्स को प्रॉपरली फॉलो करो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, तो आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो। बट अगर आपने गूगल के एल्गोरिदम्स को चीट करने की कोशिश की या गूगल के एल्गोरिदम्स के अगेंस्ट जाके कुछ करने की कोशिश की, जस्ट इसलिए, जस्ट टू जस्ट टू लाइक इंक्रीज योर ट्रैफिक, किसी गलत तरीके से अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करने की कोशिश की और किसी ऐसे तरीके से वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करने की कोशिश की जिसकी वजह से बाकी वेबसाइट्स का नुकसान हो रहा है या गूगल एल्गोरिदम्स को वो चीज़ उसके अगेंस्ट है, तो वो ब्लैक हैट में आती है, विच इज टोटली इलीगल। और इसके पेनल्टीज भी गूगल बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा सकता है। हो सकता है आपकी वेबसाइट को वो बैन कर दे, हो सकता है आपकी वेबसाइट को जो है वो किसी किस्म की कोई बहुत बड़ा चार्जेस लगा दे। बहुत सारी वो खैर डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे इस वक्त। तो उन उन चीज़ों पे भी हम नहीं करेंगे। और वो और ऐसी ब्लैक हैट चीज़ों के अंदर कभी भी आपको आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको एसईओ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपकी वेबसाइट अभी तक आपका सब कुछ करने के बाद भी आपकी रैंकिंग अभी इम्प्रूव नहीं हुई, तो थोड़ा सा और वेट कर। ओके। इसके अंदर सब्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सब्र के साथ काम करें, बजाय इसके कि आप अपना सब्र छोड़कर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के चक्कर में कहीं ब्लैक हैट में चले जाएं। और नुकसान ये होगा कि आपकी वेबसाइट हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाएगी और आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगे होंगे, आपका प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छा बनाया होगा, वो सब कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा अगर आप ब्लैक हैट की तरफ गए। ओके। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास के लाइक फंडामेंटल्स कंपोनेंट। एंड बाय द वे जो चैट बॉक्स
में मैसेजेस आ रहे हैं। जी, मैं एक मिनट, इसको हम फिनिश कर लें, देन आपके क्वेश्चंस लेंगे। ओके, ताकि हम उसको लाइक डिटेल आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आखिर में हम बहुत डिटेल में आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ओके, तो फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ के अंदर क्या क्या पहली चीज़ ये आती है कि आप वेबसाइट की ऑडिट करते हो। ऑडिट, वेबसाइट ऑडिट के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ एसईओ ऑडिट की बात होगी। एसईओ ऑडिट में बात ये होती है कि आप सबसे पहले देखते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसको हम वीक पॉइंट्स कहते हैं। आप अपनी वेबसाइट के अंदर सारे वीक पॉइंट्स ढूंढते हो। अपनी वेबसाइट के अंदर हर किस्म के वीक पॉइंट्स को तलाश करते हो। सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आपको अपनी वेबसाइट्स के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप अपनी वेबसाइट को थॉरली चेक करो। हर एक पेज को एक बार ओपन करके देखो, मोबाइल पे भी ओपन करके देखो, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे भी अपने मोबाइल को अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखो। एंड्रॉयड फोन पे भी चेक करो, आईओएस पे भी चेक करो, ताकि क्योंकि आपका जो यूज़र है वो इन सब में से किसी भी डिवाइस पे हो सकता है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट की थॉरोली चेकिंग ना की और वो आपके यूज़र तक चली गई, तो आपका इंप्रेशन खराब होना शुरू हो जाएगा, जो कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया है, जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इसीलिए अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली चेकिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सेकेंड स्टेप इज के कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जो है ये हमारे पास इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको इससे ये अंदाज़ा होगा कि गूगल पे लोग आपकी वेबसाइट के बारे में सर्च क्या करते हैं, या आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या सर्च करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट, अपने फॉर एग्जांपल आपका क्लोथिंग ब्रांड है और आप डिफरेंट गारमेंट्स सेल करते हैं, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि यूज़र जो होता है वो गूगल पे जाके क्या कुछ सर्च करता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। क्या वो पैंट्स को ज़्यादा सर्च कर रहा है, क्या वो शर्ट्स को ज़्यादा सर्च कर रहा है, या अगर वो शर्ट्स को ज़्यादा सर्च कर रहा है तो किस टाइप की टी शर्ट्स को ज़्यादा सर्च करता है, या फॉर्मल शर्ट्स को ज़्यादा सर्च करता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका अगर आपको अंदाज़ा नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे। आप, और ये एक बिजनेस माइंड के साथ आपने सोचना होता है, बिकॉज एसईओ जो है वो एक ऐसा एक आर्ट है जो कि आपको तब तक नहीं आ सकती जब तक आप यूजर को नहीं समझते। यूजर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजर बिहेवियर क्या होता है, यूजर किस तरह सर्च करता है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, आजकल के यूजर 3 सेकंड से ज्यादा वेट भी नहीं करते किसी एक वेबसाइट, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वेबसाइट्स हैं, बहुत ज्यादा और लोग हैं, बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं, वो किसी पे भी जाकर कर सकते हैं। तो एनीवेज, आपको अपने कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कीवर्ड रिसर्च को सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि आपके यूज़र क्या सर्च कर रहे हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट वगैरह करते हो। थर्ड इज कंपैरिजन एनालिसिस। कंपैरिजन एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर आपके कंपैटर्स किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपने भी लॉन्च किया है, बिकॉज फॉर एग्जांपल क्लोथिंग ब्रांड तो बहुत ज़्यादा हैं, और आपने भी अगर क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके क्लोथिंग ब्रांड में और बाकियों की क्लोथिंग ब्रांड में क्या फ़र्क है। आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा क्यों है और आपकी इतनी कम क्यों है, और आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को किस तरह इंक्रीज कर सकते हो एज कम्पेयर टू देयर। ओके, आप किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो, वो किन किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, क्या आपके कीवर्ड ज़्यादा फायदेमंद हैं या उनके। तो ये बहुत डिटेल्ड एक कंपैरिजन एनालिसिस होता है कि आप हर लिहाज से अपनी वेबसाइट की एक कंपटीशन को चेक करते हो, देन अपनी एसईओ की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हो उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये तमाम चीजें जो भी हमने किया है, डिस्कस किया है, कीवर्ड्स को किस तरह सर्च करना है, अपने कंपेटिटर एनालिसिस किस तरह करना है, ऑडिट किस तरह करना है, ये सब करने के बाद आपका स्टेप होता है कि ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अम, और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाइक अब कीवर्ड्स के वैसे तो कीवर्ड्स के सर्च करने के बहुत सारे टूल्स हैं, वो मैं आपको आगे चल के शेयर कर दूंगा कि आपने किस किस तरह करना है।
बट जब आप कीवर्ड रिसर्च कर चुके होते हो, आपके पास कीवर्ड्स आ चुके होते हैं कि ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट टी शर्ट्स इन पाकिस्तान, अब ये एक कीवर्ड होगा। अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि इस कीवर्ड पे कितने लोग ये वाला एग्जैक्ट ये कीवर्ड बेस्ट टी शर्ट्स इन पाकिस्तान कितने लोग सर्च करते हैं पूरे पाकिस्तान में। ओके, और इनको हो सकता है इनकी तादाद लाखों में हो। अगर लाखों लोग ये एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, इट्स मीन कि ये एक बड़ा कीवर्ड है और इस पे काम करना चाहिए। अगर मैं शर्ट सेल करता हूँ और मैंने कीवर्ड रिसर्च की है और उसके अंदर मुझे एक कीवर्ड नजर आया है बेस्ट टी शर्ट्स इन इन पाकिस्तान, तो मैं एज अ बिजनेसमैन इस कीवर्ड पे लाजमी फोकस करूंगा, बिकॉज मुझे इसके अंदर नजर आ रहा है कि मेरे मेरे बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर इस चीज की तलाश में है जो चीज मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये मेरे पे है कि अब मैं उनको किस तरह कैप्चर करता हूँ। ओके, और मैं ये भी देखूंगा कि मेरे कंपेटर्स इसको किस तरह कैच कर रहे हैं। क्या इस पे पहले कोई और कंपेटर है मेरा जो इस कीवर्ड पे काम कर रहा है, जिसने अपने कंटेंट के अंदर इस कीवर्ड को ऐड किया हुआ है, जिसने अपनी वेबसाइट पे इस कीवर्ड को ऐड किया हुआ है। क्या कोई और कंपेटर जो कि शर्ट्स बेचता है, क्या उसने अपनी वेबसाइट की एसईओ प्रॉपर कर रखी है, और उसने कितनी ज्यादा कर रखी है, जिससे मुझे अंदाजा होगा कि मेरा मुझे कितनी ज्यादा एफर्ट्स करनी है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको फोकस करना बहुत जरूरी है। और ये फोकस करने के बाद अब मेरे पास कीवर्ड है बेस्ट टी शर्ट्स इन पाकिस्तान। तो मेरे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पहला स्टेप ये होगा कि मैं अपने इस कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर जहां जहां पर मैंने अपनी शर्ट्स शो की हुई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं उनके साथ ये मेंशन करूंगा कि दिस इज द बेस्ट टी शर्ट इन पाकिस्तान, बिकॉज लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सर्च ही ये कर रहे हैं कि बेस्ट टी शर्ट्स इन पाकिस्तान। तो मेरी जितनी भी टी शर्ट्स मैं सेल कर रहा हूँ, उनके कंटेंट के अंदर, उनके टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिखूंगा, ये चीज मेंशन करूंगा कि दिस इज द बेस्ट टी शर्ट इन पाकिस्तान, ताकि गूगल को इस चीज का अंदाजा हो कि जो लोग सर्च कर रहे हैं वो एक्चुअली इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। देन गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, और जब भी कोई इंसान उसके बाद सर्च करेगा बेस्ट टी शर्ट्स इन पाकिस्तान, तो आपकी वेबसाइट को गूगल सबसे पहले उनको शो करेगा कि दिस इज द वेबसाइट जहाँ से आप जाके बेस्ट टी शर्ट्स इन पाकिस्तान परचेज कर सकते हो। तो फिर वो आपकी वेबसाइट को क्लिक करेंगे एंड देन आपके आपके कस्टमर इंक्रीज हो। सो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग नहीं। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग है और आपने उन कीवर्ड्स पे ही काम किया है जो वाकई लोग सर्च कर रहे हैं, देन आप इजीली अपने लाइक क्लाइंट्स को, अपने यूजर्स को कस्टमर बना सकते हो। ओके, सो एनीवेज नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट टूल्स जो हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट टूल्स काम करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, उन लोगों के लिए जो कि चैट के अंदर मुझसे पूछ रहे थे कि कीवर्ड रिसर्च हमने किस तरह करनी है, और बाकी हमें ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो ये उनके लिए है कि कीवर्ड रिसर्च अगर आप करना चाह रहे हो, तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल है, ये फ्री है, आप इस पे जाके सर्च कर सकते हो। आपको यहाँ पर आप जो भी आपका प्रोडक्ट है या ब्रांड है, आप उस पे जाकर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आप सर्च कर सकते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सर्च कर रहे हैं, और वो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देगा। फॉर फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं टी शर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आप गूगल पे जाके कंट्री सेलेक्ट करोगे पाकिस्तान, और टी शर्ट्स लिख दोगे, तो, तो गूगल आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दे देगा जो कि लोग सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर टी शर्ट्स के बारे में। वो बेस्ट टी शर्ट्स इन पाकिस्तान भी हो सकता है, या कोई स्टफ के बारे में भी, बेस्ट कॉटन टी शर्ट्स हो सकता है, इस तरह। इसके अलावा एक और टूल है सैमरश। सैमरश पेड है बट इसका फ्री वर्जन भी है, आप इस पे भी जाके सर्च कर सकते हो। ये आपको सारे कीवर्ड भी देगा, साथ में आपको ये भी बताएगा कि इसका कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ये ये आपको कीवर्ड के साथ ये भी बताएगा कि इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, लाइक कितने ज़्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। दस टी शर्ट्स इन पाकिस्तान हो सकता है 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, बट आपको साथ में ये भी बताएगा
कि 10,000 लोग सर्च तो कर रहे हैं, बट आपके 10 बड़े कंपैक्टर्स भी इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, इसलिए इस कीवर्ड पे को रैंक करना इतना मुश्किल है। 50% मुश्किल है, 70% डिफिकल्टी रेट है इसका, या 80% डिफिकल्टी रेट है। ओके। इसके अलावा इचरफ है। इचरफ बिल्कुल सेम सैमरश की तरह है, इनफैक्ट आप कह सकते हो कि सैमरश का सबसे बड़ा कंपैक्टर्स है। तो एचरफ और सैमरश दोनों सेम टूल हैं, दो डिफरेंट हैं, दोनों पेड हैं, बट दोनों का फ्री वर्जन भी है और दोनों अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप इनमें से किसी एक को यूज कर सकते हो। इसके अलावा ऊबर सजेस्ट है। ऊबर सजेस्ट भी आप छोटे कीवर्ड्स के लिए यूज कर सकते हो, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ओके। इसके अलावा ऑन पेज के लिए, जब आप अपने ऑन पेज का, अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑन पेज का जब आप डिस्कस कर रहे होते हो तो उसके अंदर ऑन पेज के एसईओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो होगा वो होगा गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स। ये दो ऐसे हैं जो कि आपको, अगर आपने वेबसाइट बनाई है और उसकी एसईओ कर रहे हो, तो इन दो के बगैर कर ही नहीं सकते। वैसे तो ये दोनों फ्री हैं, बट ये दोनों गूगल के अपने हैं, और इन दोनों को आप अपनी वेबसाइट में ऐड करोगे तो आप अपनी वेबसाइट की एसईओ स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। गूगल सर्च कंसोल जो है वो आपको आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी एरर्स जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, स्पीड, लोडिंग स्पीड, वीडियो, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग वगैरह जो हमने सारा डिस्कस किया, वो सब कुछ आपको गूगल सर्च कंसोल बताता है कि आपकी वेबसाइट में ये इशू है, इसको ठीक करो, ये इशू है, इसको ठीक करो। इनफैक्ट वो ठीक करने का तरीका भी बताएगा और आपकी वेबसाइट को ठीक भी करेगा अगर आप उसको यूज करोगे तो। और गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको आपके बताता है कि आपके आपके कितने यूजर्स आ चुके हैं, कितनी ट्रैफिक आई है, कहाँ कहाँ से आई है। इनफैक्ट आपको शहर भी बताएगा कि अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो तो किस किस शहर से कितने लोग आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने कस्टमर बने हैं, कितनों ने परचेज किया है, वो सारी डिटेल आपको डेमोग्राफिक्स और रिसर्च वगैरह एनालिटिक्स देगा। और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमने सीखी है इसके अंदर, तो उसके लिए आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं। ग्रामरली तो खैर बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल टूल है आपकी कंटेंट की ग्रामर ठीक करने के लिए। और ग्रामरली के अंदर सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि वो आपकी ग्रामर ठीक करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं ग्रामरली के जो कि आपकी एसईओ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा क्विल्ट बोल्ट है, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी पे आप जितना ज़्यादा हो सके, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को, आप सर्च करो, आप रिसर्च करो। क्योंकि जब से चैट जीपीटी आई है आपको बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको गूगल पे जाके बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा अगर आप एसईओ करना चाहते हो। आपको जो भी आप स्टार्ट करो एसईओ, आपको जहाँ पर जो भी इशू आए, आप सिंपल चैट जीपीटी से उसका क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा। वर्ड एआई भी एक एआई टूल है, सेम लाइक ग्रामरली एंड क्विल्ट। ओके। सो एनीवेज, नाउ आप अपने क्वेश्चन वन बाय वन पूछ सकते हैं। अब चैट बॉक्स में आप वन बाय वन क्वेश्चन करें, जिसका जो भी क्वेश्चन है। एंड सॉरी, मैसेजेस जितने आ रहे हैं आप काइंडली अभी मैसेज करें, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा, लिस्ट इंक्रीज बढ़ गई है और मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है लिस्ट के अंदर आपके सवाल पढ़ना। इसलिए जिसने जो भी क्वेश्चन अगर पहले किया है और मैंने नहीं देखा, तो वो अभी क्वेश्चन रिपीट कर सकते अस्सलाम वालेकुम हैं। सर। जी मैं सर आवाज़ आ रही है? आलमगीर खटक, कोर्स आउटलाइन बता देती। जी, कोर्स आउटलाइन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सर उमर की तरफ से, वो आपको उसके बारे में डिटेल्स दे देंगे। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी।
अ, सर मैंने ये पूछना था ला जैसे ऑफिस की बात है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। वो इसमें हम लिंक बिल्डिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बैकलिंक से लगाते हैं, जैसे प्रोफाइल कैश पोस्टिंग, फ्री कैश पोस्टिंग हो गई। इसी तरह जैसे हम लगाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर आपको एक कंपनी के साथ काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, एक वेबसाइट पे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो आपने मैक्सिमम लिंक बिल्डिंग, मैक्सिमम वेबसाइट्स पे जो है ना लिंक बिल्डिंग आपने कर ली हुई है। अब जब आप मजीद उसके लिए लिंक बिल्डिंग करते हैं तो आपको वही वेबसाइट दोबारा सामने आ जाती है जो कि आप जिस पे आप काम कर चुके हो, जिस कीवर्ड पे आप बैकलिंक लगा चुके हो। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? क्या दोबारा उन्हीं वेबसाइट पे बैकलिंकिंग की जाए कि क्या करना चाहिए इस टाइम? जी, वेल एंड गुड। आपका क्वेश्चन तो बहुत माशाल्लाह से ऐसा है जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप एसईओ में पहले से हो। तो गुड टू नो। इसमें ऐसी चीज़ है कि अगर आप बैकलिंक्स की बात कर रहे हो और बैकलिंक्स के अंदर आपने वेबसाइट्स, इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स, बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स, गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल पोस्टिंग पे काम कर लिया है और आपके सामने रिपीट होने शुरू हो गई हैं वेबसाइट्स, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप दोबारा भी उन पे वेबसाइट पे बैकलिंक्स बना सकते हो, एक से ज़्यादा बैकलिंक्स बना सकते हो एक वेबसाइट पे। इसमें गूगल की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपने एक ही वेबसाइट पर 10 या 20 या 50 बैकलिंक्स बनाए हो। वो गलत हो जाएगा। उसमें आपको खुद नुकसान होगा, क्योंकि उस वेबसाइट की का जो फायदा आपको होना था उस बैकलिंक का, वो आहिस्ता आहिस्ता नुकसान बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक वेबसाइट पे अगर आपने 1 2 3 4 5 बैकलिंक्स बना लिए, तो ये एक नॉर्मल एवरेज है और इतना हो जाना लाइक कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट ये अच्छी बात फिर एक पॉइंट मेरा ये भी था, इसमें मैं ज़रा ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि सर किसी वेबसाइट का डीआर बढ़ाने के लिए, डीए बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? क्योंकि आपको पता है डीआर बढ़ाने के लिए एक टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लगता है काफ़ी। या तो आप पेड गेस्ट पोस्टिंग की तरफ जाते हैं, तो लेकिन अगर हम पेड गेस्ट पोस्टिंग की तरफ नहीं जाते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? है। देखिए, डीए वगैरह जो है ना, ये जितनी भी टीए पीए वगैरह चीज़ें जितनी भी हैं, पहली चीज़ तो आपको इस चीज़ का भी अंदाजा होगा कि गूगल इन चीज़ों को नहीं मानता। ठीक है, डीए पीए जो है वो एक थर्ड पार्टी टूल की चीज़ें हैं। गूगल इनको नहीं मानता। अगर आपकी वेबसाइट का डीए 100 भी है या 90 भी है, तो ये सिर्फ आपके लिए या उस थर्ड पार्टी जहाँ से आप चेक कर रहे हो, जिस टूल से आपने अपना डीए चेक किया, ये उसके लिए। गूगल इसको बिल्कुल नहीं माना। ठीक है, और ना ही गूगल ने कभी ये कहीं पर अपने गूगल ने अपने पोस्ट के अंदर या अपने ब्लॉग के अंदर कहीं ये चीज़ मेंशन नहीं की कि हम डीए को एक्सेप्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये। बट क्योंकि अब मार्केट में एक चीज़ है, इसलिए लोग उसके पीछे जाते हैं और लोगों को हर सूरत में अपना डीए इंक्रीज करना ही करना होता है। तो उसका हल ये है कि आप उसके लिए वेबसाइट्स जितनी इंक्रीज करना चाहो, आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स इंक्रीज करो। और हाई डीए, अगर आपका डीए 10 है और आप 50 करना चाह रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप 70 80 और 90 की डीए वाली वेबसाइट्स पे से जितने ज़्यादा बैकलिंक्स हो सकें आप लो। तो आपका डीए आहिस्ता आहिस्ता 10 से 11 12 13 50 होता चला जाएगा और 50 तक पहुंच जाएगा। बट ये ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। और अगर एक दिन में होगा तो अगले दिन दोबारा से वो 0 पे आ जाए। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, जो सवाल कर ले काइंडली वो अपना माइक ऑफ थैंक यू। कर दे, और जिसने नेक्स्ट थैंक सवाल यू सर, करना है वो समझ आ गई आप हैंड रेस आपकी करके समझ आ गई सर, अपना थैंक माइक यू आपका। ऑन कर सकते और सर अच्छा, एक एक वेबसाइट्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि चाइनीज़ होती हैं, लैंग्वेज मतलब उनकी चेंज करनी पड़ती है। ऐसी जगहों पे, ऐसी वेबसाइट पे बैकलिंक लगा के हमें नुकसान ही मिलता है ना, मतलब कि वो अच्छी वेबसाइट तो नहीं ना कंसिडर की जाएंगी जिनकी लैंग्वेज पहले चेंज करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन है, इट्स मीन कि वो मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स होती हैं। और मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स का मतलब ही ये होता है कि वो एक से ज़्यादा एरिया में या एक से ज़्यादा रीजन में यूज़ होने के लिए बनी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वेबसाइट के अंदर क्योंकि आपको मैं ई कॉमर्स के थोड़ा डिटेल देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार अमेजोन की एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन को अगर आप देखो तो अमेजोन मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट है। उसको अगर आप चाइना के अंदर बैठ के सर्च करते हो, तो आप चाइना के अंदर ट्रांसफर करके अपना सारा डेटा लाइक उसके अंदर रीडिंग चाइना में कर सकते हो।
सऊदी अरब में बैठ के सर्च करोगे तो आप अरबी में कर सकते हो, बट इवन देन अगर आपने वहां से बैकलिंक लिया तो वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर एक अमेजोन से बैकलिंक आ रहा है, या इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हो सकती है विकीपीडिया। अब विकीपीडिया तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, आपको पता है विकीपीडिया का डीए क्या है? यस सर, विकीपीडिया का वो डीए लेकिन 98 सर है। जी बिल्कुल सर, लेकिन विकिपीडिया से सर वो बैकलिंक मिलता नहीं होता। मैंने एक दो दफ़ा क्रिएट किया है, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिमूव कर देता है वहाँ से। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। लाइक अब ऑब्वियसली ये डिबेट में जाने वाली बात है, डिबेट मैंने में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको तो इतना बता रहा हूँ कि विकीपीडिया से भी बैकलिंक मिल जाता है, कि अपने विकीपीडिया की लेकिन सर जो वो रिमूव कर देता है। पॉलिसी है ना वो बहुत सख्त है। जी ओके, और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं। आप काइंडली वन बाय वन अपना हैंड रेस करें एंड माइक्स ऑन कर लें, वन बाय वन, बजाय इसके कि हम आप लोग वेट करें। जी तारिक। जी, व्हाट आर गूगल एल्गोरिदम्स? जी, गूगल एल्गोरिदम्स अभी हमने पहले डिस्कस किया है। गूगल एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो प्रॉपर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फॉर्मूला होते हैं जो कि बैकएंड पे बनाए जाते हैं, जिससे कोई सर्च इंजन चलता है। अगर गूगल के एल्गोरिदम है तो गूगल ने अपने एक प्रॉपर कुछ सेटिंग्स बनाई हुई हैं। जिस तरह मैंने बताया कि वो अपने जब अपने यूजर को अच्छा रिजल्ट देने के लिए प्रॉपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है, कि हमारे किसी भी यूजर के लिए जब भी कुछ सर्च करना है तो उसकी उसके सर्च के आंसर में उसको रिजल्ट शो करते वक्त हमने किस किस चीज का क्राइटेरिया का देखना है। एंड देन ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आप गूगल पे जाओ और गूगल पे सर्च करो कि पिज़्ज़ा नियर मी, तो आप नोट करोगे कि गूगल आपके ही एरिया के अंदर आपको पिज़्ज़ा की शॉप्स दिखाएगा, कभी भी वो इंडिया में नहीं दिखाएगा या श्रीलंका में नहीं दिखाएगा। तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि आप किस एरिया में हो? इसका मतलब है कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो आपके मैप के साथ या आपकी लोकेशन के साथ भी सेट हुआ है। तो वहाँ एक फॉर्मूला उसने लगाया हुआ है कि जो इंसान जिस एरिया में बैठ के सर्च कर रहा है उसको उसी के इर्द गिर्द की चीजें दिखाई जाएं। तो वही आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह गूगल एल्गोरिदम काम करता है कि आपको आपके क्वेश्चन के मुताबिक, आपकी क्यूरी के मुताबिक आपको अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर करता है। इसको हम आम अल्फाज में गूगल एल्गोरिदम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इमेज सेक्शन में भी एसईओ अप्लाइड होता है? यस ऑफ कोर्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक प्रॉपर एसईओ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि इमेज के अंदर आपका कीवर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ, इमेज का लोडिंग टाइम कितना है, इमेज का साइज कितना बड़ा है, इमेज की डायमेंशंस कैसी हैं, इमेज की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं और इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीए? डीए इज डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी ये डिफरेंट टूल्स जो भी हमने पहले डिस्कस किए थे उन टूल्स के अंदर उन्होंने एक टर्म यूज की है, डोमेन अथॉरिटी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आपकी जो डोमेन है, जो आपकी वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी कितनी ज़्यादा है, वो कितनी ज़्यादा ट्रस्टेबल है। बट ये थर्ड पार्टी टूल्स का के है, इसको गूगल नहीं मानता, ठीक है, और इसीलिए गूगल ने कभी इस पे डीए पे किसी किस्म का कोई अपना एल्गोरिथम वगैरह नहीं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट किसी को क्वेश्चन है तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है। वेबसाइट स्पीड कैसे बेहतर की जा सकती है? वेबसाइट स्पीड बेहतर करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी इमेजेस हैं उन इमेजेस पे सबसे पहले काम करो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा आपकी वेबसाइट की इमेजेस ही होती हैं जो आपका लोडिंग टाइम ले रही होती हैं।
ठीक है ना। और इमेजेस का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ आपने जो इमेज लगाई, इमेजेस के अंदर आपका लोगो भी आता है, लोगो से लेकर आपके लास्ट नीचे छोटे से एक बटन तक। आपके लिए एक बटन बहुत छोटा सा होगा, बट वो लोडिंग टाइम आपका कितना इंक्रीज कर रहा है इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। उसके लिए एक टूल है, पेज स्पीड इंसाइट, गूगल का ही टूल है। उस पे जाओ, उस पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगाओ, तो वो आपकी वेबसाइट की सारी लोडिंग स्पीड्स बता देगा कि कौन सा इमेज कितना ज़्यादा लोडिंग टाइम ले रहा है, कौन सा इमेज आपकी लोडिंग स्पीड को ख़राब कर रहा है, कौन सी वेबसाइट, कौन सा लिंक जो है वो आपको नुकसान दे रहा है, कौन सा कंटेंट आपके लिए ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है। तो वो कंप्लीट आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या लोडिंग स्पीड को आपको रिपोर्ट दे देगा। और आपको बल्कि वो बता भी देगा कि कहाँ कहाँ पर आपने चीज़ें इम्प्रूव करनी है, तो आप वहाँ जाके इम्प्रूव कर सकते हो और आपकी वेबसाइट अच्छी हो जाएगी। पेज स्पीड इंसाइट, इसके अलावा जीटी मैट्रिक्स, ये भी एक टूल है, ये गूगल का तो नहीं है, लेकिन ये आप जाके सर्च कर सकते हो और वहाँ से सर नेम राइटिंग दे। जी मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं आपको जो नेम है उनके टूल के, वो मैं आपको लिख के आपको चैट में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। जीटी मैट्रिक्स है और एक पेज स्पीड साइट है। ये दो टूल्स हैं, इस पे आप जाके अपनी वेबसाइट की लाइक जो टेक्निकल एसईओ वाला पार्ट है ना, वो सारे के सारा आपको ये इन दो में से किसी एक पे आप ओपन कर लो, आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम मज़ीद डिटेल्स के अंदर इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और आपके मज़ीद क्वेश्चंस के आंसर हम उसके अंदर देंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।